Welcome friends. Today we will see activity based cost management institute sums. So activity based costing distributes overhead on the basis of activity consumed. So let's see the first illustration. Budgeted overheads and cost driver volumes of XYZ are follows. So budgeted overhead are given for material procurement, material handling, setup, maintenance, quality control and machinery. Their cost drivers, respective cost drivers are given. Now budgeted volume for each of the following are also given. For material procurement, budgeted volume is 1100 and following are also given. Next, the company has produced a batch of 6,000 to 2,600 components. So total number of batch produced is of 6,000 to 2,600 components of AX15. This is the product. Its material cost was 1,30,000 and labor cost is 2,45,000. Now usage activities of said batch are as follows. Material orders, number of orders given for material is 26, maintenance hours 690, material movement 18, inspection 28, setup 25, machine hours 1800. Now calculate cost driver rates that are used for tracing appropriate amount of overheads to said batch and ascertain the cost of batch component using activity based costing. So first we have to calculate cost driver rate. How it is calculated? Cost driver rate formula is overhead divided by volume. So for each one we will get cost driver rate. So for material procurement, overhead is 5,80,000 and volume is 1,100. So cost driver rate for material procurement is 527. Similarly, for material handling, we have budgeted overhead of 2,50,000 and that budgeted volume is 680. So 2,50,000 divided by 680 equals to 368. Similarly, we will find out the value cost driver rates for setup, maintenance, quality and machinery. Once we are done with cost driver rates, we will calculate cost of batch. Now we have to calculate cost of batch using ABC costing. That is based on activity, we will distribute the overhead. Computation of batch cost of 2600 units of AX15. So first we will have the prime cost. Material cost given is 1,30,000 and labor cost given is 2,45,000. So prime cost equals to 3,75,000. Now we will add the overheads based on the cost driver rate we have calculated. For material order, we calculated cost driver rate as 527. So for ordering one time, we have incurred the cost of 527. For 26 times, because we have ordered 26 times, so total overhead of material orders is 26 into 527, that is 13,702. Similarly, we will calculate for each of the following, that is for material handling, setup, maintenance, quality and machinery. For material handling, we will have 368 into material handling will come under the material movement. So 368 into 18. Similarly, setup 798 into setup 25 times. So 798 into 25. Then for maintenance, we have 115 into maintenance hours 690. Quality control 196 into inspection 28. So 28 into 196. Machinery 30. We know machinery will be given in machine hours. So 1800 into 30. Thus we will calculate the total cost of each of the following, each of the given, and then we'll arrive at total cost by adding all the overheads with the prime cost. So this is the total cost of the batch. अगला क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेशन 2. कंपनी है जो 4 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है PQRS. क्वांटिटी प्रोड्यूस इज 1000 फॉर P, 10,000 फॉर Q, 1200 फॉर R एंड 40,000 फॉर S. मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट चारों प्रोडक्ट का दिया है. डायरेक्ट लेबर, मशीन एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट सबका ईच प्रोडक्ट का गिवन है. अब क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एज अंडर. सो ओवरहेड्स एप्लीकेबल टू मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी. तो ये जो ओवरहेड है ये हमारा मशीन एक्टिविटी पे एप्लीकेबल है. कितना अमाउंट है, 1,49,700. Similarly, overhead relating to ordering material, setup cost, admin and material handling भी दिया हुआ है.
फर्दर इन्फॉर्मेशन दिया है कि प्रोडक्ट पी पे नंबर ऑफ सेटअप कितना लगा है, 3 बार। नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर मतलब 3 बार मटेरियल ऑर्डर लग रहा है टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स मटेरियल्स हैंडल्ड 6, नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स 6। आरएस क्यूआरएस का भी सेम दिया हुआ है। नाउ रिक्वायर्ड है टू सिलेक्ट अ सुटेबल कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच आइटम ऑफ ओवरहेड एक्सपेंस। सो सुटेबल कॉस्ट ड्राइवर सेलेक्ट करना होगा फॉर ईच ओवरहेड एक्सपेंस। ओवरहेड एक्सपेंस हमारा कितना गिवन है, ये वाला अमाउंट हमारा ओवरहेड एक्सपेंस है, इसके लिए कॉस्ट ड्राइवर फाइंड आउट करना है। सो ऑफकोर्स जो मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी है, ये हमारा जो बेस रेट होगा वो मशीन आवर रेट होगा। फॉर ऑर्डरिंग मटेरियल हमारा जो बेस रेट होगा नंबर ऑफ मटेरियल्स ऑर्डर। सेटअप कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ सेटअप कॉस्ट, एडमिन का नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स एंड मटेरियल हैंडलिंग का टाइम्स ऑफ मटेरियल हैंडल्ड। ओके, अब हम लोग को पहले निकालना है कॉस्ट पर यूनिट निकालना है ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। सो सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए कॉस्ट ड्राइवर निकालना जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले कॉस्ट ड्राइवर निकालेंगे, देन कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। ओके, तो कॉस्ट ड्राइवर कैसे निकलेगा, सी पी का 1000 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, हम लोग को सबसे पहले ईच का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी के लिए निकालेंगे। सो ये वाला हमारा मशीन आवर पे निकलेगा। सो 1000 यूनिट इंटू मशीन आवर रेट। ओके, सिमिलरली क्यू का 10,000 इंटू 0.5, 1200 इंटू 2, 14,000 इंटू 3। चारों प्रोडक्ट का हमारा निकल आएगा वैल्यू। हम लोग चारों का वैल्यू ऐड कर देंगे। सो उसका टोटल वैल्यू प्रोडक्ट पी क्यू आर एस प्रोडक्शन यूनिट्स 1000 जो बुक में दिया हुआ है, और मशीन आवर रेट फॉर ईच प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट मशीन रेट से, तो हमारा टोटल मशीन आवर निकल आएगा फॉर प्रोडक्ट पी। इसी तरह से चारों का निकालेंगे पी क्यू आर एस, तो टोटल मशीन आवर हमारे पास है 49,900। इसके बाद हमारा जो टोटल ओवरहेड दिया था दैट इज मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी पे, उससे डिवाइड कर देंगे मशीन आवर्स टोटल जो भी निकाले हैं, तो हमारा कॉस्ट ड्राइवर आ जाएगा 3। इसी तरीके से हम लोग बाकी का भी निकाल लेंगे। ऑर्डरिंग मटेरियल ऑर्डरिंग, तो मटेरियल ऑर्डरिंग का ओवरहेड गिवन है बुक में 7,680, और नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर इसका हमारा कॉस्ट ड्राइवर रेट हम लोग सेलेक्ट किए थे। सो टोटल कितना आया फॉर पी क्यू आर एस ऐड करके 30 आ रहा है। सो टोटल ओवरहेड को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर अमाउंट से, ठीक है। सो ये नंबर 30 इससे ऐड डिवाइड कर देंगे, सो ये वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह से सेटअप का भी हम लोग निकाल लेंगे एंड एडमिन और मटेरियल हैंडल का भी वैल्यू निकाल लेंगे। सो ये हमारा आया कॉस्ट ड्राइवर। अब कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट पर यूनिट निकालना है। तो मशीन का हमारा क्या आ रहा है, मशीन ओरिएंटेड जो वैल्यू हम निकाले थे, ईच का देखिए 500 5000, सो वैल्यू आ रहा है वही वाला वैल्यू पी का 500 था, मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट ड्राइवर रेट से, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा, तो डिवाइड बाई 1000 कर देंगे तो पर यूनिट आ जाएगा हमारे पास। सो हमारा कॉस्ट ड्राइवर रेट पी का है 1.5, क्यू का आएगा 1.5, आर 6 और एस का 9। ये हमारा मशीन ओरिएंटेड था। इसी तरह से हम लोग ऑर्डर्स और बाकी का भी निकाल लेंगे। और उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, कंप्यूट फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। सो फैक्ट्री कॉस्ट कंप्यूट कर लेंगे। पहले मटेरियल और लेबर, पी का 10, ये वाला वैल्यू देखिए बुक में दिया हुआ है मटेरियल कॉस्ट, सी मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 10 10 32 34, लेबर का भी दिया हुआ है 10 10 32 24, लेबर लिख लेंगे। देन ओवरहेड्स मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी का अभी हम लोग जस्ट निकाले 1.5 1.5 6 और 9, ठीक है। इसी तरह से हम लोग ऑर्डरिंग मटेरियल्स का भी निकाल लेंगे, तो उसका वैल्यू भी वैसे ही आएगा। सी ऑर्डरिंग मटेरियल का हमारा कॉस्ट ड्राइवर था 256, ओके। तो सी ये पी क्यू आर एस है, ठीक है। तो 256 इंटू 3 फॉर पी डिवाइडेड बाय 1000, क्यू का 256 इंटू 12, ये हमारा ऑर्डरिंग यूनिट है, ठीक है। बुक में दिया हुआ है जो नंबर ऑफ ऑर्डर सी 312 512 वही वाला है।
टोटल 256 जो कॉस्ट ड्राइवर रेट है इंटू 312 ईच के लिए डिवाइडेड बाई यूनिट्स, तो हमारा पर यूनिट वैल्यू आ जाएगा। सो वही पर यूनिट वैल्यू है 0.768 ऐसा ऐसा। और सेटअप कॉस्ट भी हम लोग निकाल लेंगे एंड एडमिन और मटेरियल का भी। सो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट हमारा ऐड करने से वैल्यू आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 3, ऑटो कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल टू ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स ए एंड बी। ठीक है, दोनों ही आइडेंटिकल है विथ स्लाइट डिफरेंस इन वेरिएशन इन डिजाइन। दोनों का प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट दिया है जो कि सेम है, सेम फॉर बोथ। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल्स है, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड ओवरहेड 400% ऑफ डायरेक्ट लेबर। सो डायरेक्ट लेवल का 400% 96 एंड टोटल कॉस्ट इतना आ रहा है। क्वांटिटी सोल्ड ए और बी का दिया है टोटल, और फॉलोइंग डेटा दिया है। अब यहाँ पे जो कंपनीज मार्केटिंग मैनेजर है वो वर्कशॉप अटेंड करता है और उसको पता चलता है कि नियरेस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस जो है टू प्रोडक्ट का 330 एंड 275 पर यूनिट रेस्पेक्टिवली है। नाउ इफ द कंपनी कैन मैच द कॉम्पिटिटिव प्राइसेस इट कैन सेल 75,000 नंबर ईच ऑफ द टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, नाउ प्रोडक्शन मैनेजर कंफर्म करता है कि ये इतना प्रोडक्ट मिक्स प्रोड्यूस कर सकता है विद द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी। तो as the manager engaged you as consultant and the following facts have been identified by you. Product A undergoes 5 operation and B undergoes 2 operation. So ratio होता है 5:2. Then 75% of the overhead is accounted by 3 major heads relating to subcontracting. So ये जो 75% overhead है ये variable है हमारा, बाकी का बचा 25% हमारा fixed होगा। So कैसे हम लोग बोल रहा है कि prepare a revised profitability statement. सो टोटल है ओवरहेड हमारा कैसे आएगा। ओवरहेड रेट हम लोग को 96 दिया है और टोटल क्वांटिटी सोल्ड है 1,47,150। सो वी विल मल्टीप्लाई, तो टोटल ओवरहेड आ जाएगा। इसका 75% जो है वो वेरिएबल है, ऑपरेशन ओवरहेड है। 75% ये हमारा वेरिएबल पार्ट है। नेक्स्ट जो 25% बैलेंस है वो हमारा हम लोग अज्यूम कर लेंगे फिक्स, क्योंकि अगर 75 वेरिएबल है तो बाकी का फिक्स होगा। सो जो ये फिक्स अमाउंट आ रहा है इसका 25% ये हम लोग इक्वली ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नाउ एलोकेशन ऑफ वेरिएबल ओवरहेड। सो वेरिएबल ओवरहेड जो हमारा ये आया है इसको कैसे एलोकेट करेंगे। सी, ए जो था वो 5 ऑपरेशन अंडरगो कर रहा था और बी का 2, तो 5:2 के रेशियो में इस वेरिएबल ओवरहेड को भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो 5/7 एंड 2/7। अब बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जस्ट हम लोग को प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, सो मटेरियल दोनों का ही सेम हमारा दिया हुआ है। सो मटेरियल 125, लेबर 24, एक्सपेंस 36 एंड 36। सो प्राइम कॉस्ट हमारा आ जाएगा कैसे। सी 125 इंटू यूनिट प्रोड्यूस 75,000 एंड 75,000। 75,000 प्रोड्यूस करना है, सो दोनों का ही 75,000 है। हम लोग मटेरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल यूनिट हमारा आ जाएगा। इस तरह से हम लोग प्राइम कॉस्ट निकाल लेंगे। 24,000 इंटू 75, 36,000 इंटू 75, तो हमारा प्राइम कॉस्ट दोनों का ही सेम आया लगभग। देन वेरिएबल ओवरहेड हमारा कितना था। सी 75,67,714 सी, और बी का हमारा आया था 30, तो यहाँ पे 30 लाख समथिंग। देन फिक्स्ड ओवरहेड हम लोग इक्वली बांट रहे थे ये वाला अमाउंट, तो दिस डिवाइड बाय 2 हमारा अमाउंट आ जाएगा 17 लाख समथिंग। तो दोनों को हम लोग बांट दिए तो टोटल कॉस्ट हमारा निकल के आ गया। नेक्स्ट हमको सेल करना है 330 पे और 270 पे, तो 330 इंटू 75,000 इतना आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी आ जाएगा। नाउ इफ वी डिवाइड माइनस सेल्स बाय कॉस्ट, तो हमारा ये प्रॉफिट अमाउंट आ जाएगा। वंस वी गेट द प्रॉफिट अमाउंट विल गेट द, और इससे डिवाइड करने से हमारा प्रॉफिट पर यूनिट भी आ जाएगा। सो एज द प्रॉफिट इज मोर एट द मार्केटिंग मैनेजर्स प्रपोजल बाय 9 लाख समथिंग, सो हेंस दिस प्रपोजल में बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे प्रॉफिट हमारा ज्यादा आ रहा है, सो हम लोग ये वाला एक्सेप्ट कर लेंगे। इलस्ट्रेशन फॉर, एक कंपनी 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है PQR। सी डेटा गिवन है और ओवरहेड्स सेटअप, मशीन, रिसीविंग, पैकिंग, इंजीनियरिंग का ओवरहेड्स दिया है। द कंपनी ऑपरेट्स अ JIT इन्वेंट्री पॉलिसी एंड रिसीव्स ईच कंपोनेंट वंस पर प्रोडक्शन रन। तो JIT पॉलिसी में ऐसा होता ही है कि जब भी ऑर्डर आएगा उसी समय प्रोडक्शन भी रन किया जाएगा। देन रिक्वायर्ड कंप्यूट द प्रोडक्ट कॉस्ट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर रिकवरी रेट ऑफ ओवरहेड्स। सो ये हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड हो गया। कैसे ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जितना भी ओवरहेड है हम लोग टोटल ओवरहेड को एक ही रिकवरी रेट से एब्जॉर्ब करते हैं। सो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर आवर रिकवरी रेट गिवन है। तो सी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स।
टोटल हमारा जो ओवरहेड है इसका हम लोग टोटल कर देंगे तो उसका वैल्यू आएगा 36,96,000, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे डायरेक्ट लेबर आवर्स में। सो डायरेक्ट लेबर आवर्स कैसे निकलेगा, हमारे पास पी का टोटल यूनिट कितना है 60,000, लेबर को डायरेक्ट लेबर आवर्स हमारा 2.5 है 60,000 के लिए, तो 60,000 इंटू 2.5 टोटल अमाउंट टोटल लेबर आवर निकल आएगा। सिमिलरली फॉर क्यू 40,000 इंटू डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट इज 4, सो 40,000 इंटू 4 16,000 इंटू 2, सी वही किए यहाँ 16,000 इंटू 2 होगा, 3 नहीं होगा। सो हमारा टोटल वैल्यू आएगा 3,42,000। सो टोटल ओवरहेड को डिवाइड कर देंगे हम लोग डायरेक्ट लेबर आवर्स से। सो हमारा रिकवरी रेट निकल के आया 10.81 रुपीज 10.81 पर लेबर आवर। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। सो रॉ मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कितना है, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज 50 फॉर पी, क्यू 40 एंड आर 22, सी 50 40 22। डायरेक्ट लेबर भी वैसे ही हम लोग 16 24 एंड 12 लिख लिए। देन वी हैव ओवरहेड्स। सो ओवरहेड्स हमारा रुपीज 10.81 आ रहा है। सो पी के लिए कितना होगा, सी डायरेक्ट आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स 2.5 4 एंड 2, सो 2.5 इंटू 10.81 इक्वल्स टू 27.025। फॉर क्यू हमारा 4 आ रहा था तो 4 इंटू 10.81 वी विल हैव 43.24 एंड फॉर आर 2 इंटू 10.81 21.62। सो हमारा ऐसे फैक्ट्री कॉस्ट निकल आएगा, हम लोग तीनों को ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कंप्यूट द प्रोडक्ट कॉस्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम लोग एक्टिविटी के बेसिस पे हम लोग ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला ओवरहेड है सेटअप। तो सेटअप के लिए हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, तो मतलब सेटअप का ओवरहेड हम लोग सेटअप से एब्जॉर्ब करेंगे। सो टोटल 60,000 है, तो 60,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम प्रोडक्शन रन हो रहा है, दैट इज टोटल हमारा 60 टाइम प्रोडक्शन रन हो रहा है। 60,000 डिवाइड बाई 60 वी विल हैव रुपीज 1,000 पर रन, मतलब एक बार रन करने पर 1,000 का खर्चा आ रहा है, ठीक है। मशीन्स का ओवरहेड जो है हम लोग वो मशीन आवर्स पे एब्जॉर्ब करेंगे। सो 15,20,000 डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स टोटल कितना है 2,94,000। सो इसका वैल्यू आएगा रुपीज 5.17। सिमिलरली रिसीविंग का भी हम लोग और रिसीविंग पैकिंग और इंजीनियरिंग का भी ऐसे ही बेसिस पर निकाल लेंगे। ठीक, मशीन का आ गया टोटल मशीन ओवरहेड डिवाइड बाय मशीन आवर रेट पर निकाल लिए, कॉस्ट ड्राइवर हमारा मशीन आवर रेट है। रिसीविंग पैकिंग और इंजीनियरिंग भी वैसे ही निकाल लेंगे हम लोग। देन जब हम लोग कंप्यूट करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट, तो हमारा मटेरियल और लेबर गिवन है क्वेश्चन में, पी का 50 क्यू का 40 एंड 22, सिमिलरली लेबर भी दिया हुआ है। देन ओवरहेड्स हम लोग कैसे लिखेंगे, सेटअप कॉस्ट। सी हमारा सेटअप कॉस्ट जो था हमारा टोटल वैल्यू आया था 1,000, सो ये 1,000 पर रन था। बट फॉर हमारा पी कितना यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, हमारा पी के लिए 60,000 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमारा 1,000 डिवाइड बाई 60 इंटू 6, ये 60 इंटू 6 कहाँ से आया, सी हमारा 60,000 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है और हमारा जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन है पी के लिए वो है 6, तो 1,000 रुपी पर रन, तो हमारा टोटल रन कितना हो रहा है 60 डिवाइड बाई, हम लोग को पर यूनिट चाहिए तो हम लोग डिवाइडेड बाई 60,000 करेंगे। सिमिलरली सी क्यू का क्या है 40,000 यूनिट है और प्रोडक्शन रन कितना हो रहा है 14, सो क्यू के लिए क्या हो जाएगा रुपीज 1,000 हमारा आ रहा था पर रन, तो हमारा क्यू में रन कितना हो रहा है 14 टाइम्स आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन, पर यूनिट निकालना है तो 40,000, सो 1,000 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 40,000, 0.35, सी 0.35। आर का भी हम लोग वैसे ही निकाल लेंगे। देन मशीन्स, रिसीविंग कॉस्ट, पैकिंग एंड इंजीनियरिंग सेम प्रोसेस से पर यूनिट निकाल लेंगे। ये हमारा टोटल कॉस्ट आ रहा था ना, तो हम लोग इसका पर यूनिट निकाल लेंगे, सबको ऐड करके हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 5, अ कंपनी मेक्स three main products using broadly the same production methods and equipment for each. A conventional product costing system is used, conventional use हो रहा है, although an activity based costing system is being considered. So ABC is considered but they are using conventional method, means the traditional method. Details is given for three products X, Y and Z.
डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया हुआ है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन मशीन आवर बेसिस, ठीक है। रेट फॉर द पीरियड इज 28 पर मशीन आवर, ₹28 पर मशीन आवर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग कन्वेंशनल मेथड। तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड से कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर यूनिट। तो ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग मशीन आवर रेट का बेसिस यूज करेंगे और हमारा ₹28 पर मशीन आवर वैल्यू दे दिया गया है। सी फॉर प्रोडक्ट एक्स मशीन आवर पर यूनिट इज 1.5, 1/2 मीन्स 1.5। टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन हमारा 750 है, तो 750 इंटू मशीन आवर, इतना यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना मशीन आवर यूज करना पड़ेगा, तो पर यूनिट हमारा 1.5 है, तो 750 के लिए 1.5 इंटू 750 टोटल आवर्स आ जाएगा। देन टोटल आवर्स इंटू 28, तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा ओवरहेड का। वाई के लिए भी सेम करेंगे, यूनिट्स 1250 इंटू मशीन आवर्स पर यूनिट दैट इज 1 इंटू रेट 28, जेड का भी वैसे ही हो जाएगा सी। सो हमारा टोटल ओवरहेड 6,54,500 आ गया। अब टोटल ओवरहेड निकालने के बाद हम लोग को टोटल मशीन आवर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मशीन आवर पर ओवरहेड को एब्जॉर्ब कराएंगे। तो फॉर पी हमारा 750 यूनिट्स है टोटल इंटू मशीन आवर दैट इज 1.5, यही वाला ही है, खाली 28 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये अमाउंट आ जाएगा, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल मशीन आवर्स हमारा आ गया। अभी टोटल मशीन आवर आ गया तो हम रिकवरी रेट निकाल लेंगे कैसे, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स। सो हमारा वैल्यू आएगा ये डिवाइडेड बाय 23375। सो हमारा रिकवरी रेट जो है वो 28 आ जाएगा। मटेरियल कॉस्ट तीनों प्रोडक्ट का गिवन है। लेबर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 6 इंटू 0.5, 6 इंटू 1.5 एंड 6 इंटू 1। सो हमारा वैल्यू आएगा 6 इंटू 0.5 3, 6 इंटू 1.5 9, 6 इंटू 1 6। ओवरहेड्स को भी वैसे ही डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे। सी रिकवरी रेट हमारा 28 आ रहा है, सो 28 इंटू मशीन आवर्स। पहला का मशीन आवर कितना दिया हुआ है 1.5, सो 28 इंटू 1.5 42, दूसरे का है 1 और थर्ड का है 3, सो 28 इंटू 1 28, 28 इंटू 3 84। टोटल को ऐड करके हमारा फैक्ट्री कॉस्ट निकाला जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम लोग को कॉस्ट पर यूनिट एबीसी प्रिंसिपल पे निकालना होगा, और हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा दिया है कि ओवरहेड को किस परसेंटेज में हम लोग रिलेटिंग टू एक्टिविटी डिवाइड किया हुआ है। सो हम लोग इसी बेसिस पे हम लोग ओवरहेड निकाल लेंगे। सी सेटअप का 35%, सो हमारा जो टोटल ओवरहेड आया है इसका 35% हमारा सेटअप का कॉस्ट हो जाएगा। सी 35% ऑफ टोटल ओवरहेड, मशीन का भी 20% ऑफ टोटल ओवरहेड 1,30,900। सिमिलरली बाकी का भी निकाल लेंगे, कॉस्ट आ जाएगा। वंस कॉस्ट आ गया तो कॉस्ट ड्राइवर रेट भी निकल आएगा। कैसे, ये कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सेटअप के लिए, नंबर ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग के लिए, और मशीन कॉस्ट के लिए मशीन आवर्स हमारा हम लोग निकाले हैं 23375, ठीक है। सी 23375 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कॉस्ट ड्राइवर रेट आ जाएगा। ऐसे ही सबका हम लोग कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल लेंगे। देन फाइनली कॉस्ट पर यूनिट अंडर एबीसी कॉस्टिंग हम लोग बनाएंगे शीट। सी एक्स का मटेरियल 20, लेबर 3 हम लोग निकाल चुके हैं। ओवरहेड ऐड करेंगे सेटअप कॉस्ट का। सी सेटअप कॉस्ट का वैल्यू हमारा आया था कितना 341, सी 341.90 ये हमारा रेट आया था, ठीक है। सो 341.90 हमारा रेट इंटू हम लोग 75 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 750 से, क्योंकि हमारा एक्स का टोटल यूनिट हमारा 750 था, तो पर यूनिट निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। और 75 जो है वो हमारा सेटअप का प्रोडक्ट एक्स का सेटअप का वैल्यू है। प्रोडक्ट वाई के लिए 115 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जेड के लिए 480 से, और हम लोग टोटल डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट प्रोड्यूस दैट इज 750, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यही प्रोसेस सब में यूज करेंगे। मशीन कॉस्ट में, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट में क्या हो जाएगा, हैंडलिंग कॉस्ट इंटू 12 डिवाइड बाई 750 एक्स के लिए, क्योंकि एक्स में हैंडलिंग कितना है 12 है, सी 12 है। वाई के लिए 21 हो जाएगा, जेड के लिए 87 हो जाएगा। इंस्पेक्शन के केस में 150, 180 और 670 हो जाएगा। और टोटल यूनिट हम लोग यहाँ से अपना सी 750 एक्स का, वाई का 1250 और जेड का 7000, ऐसे करके हम लोग टोटल वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे एंड टोटल कॉस्ट हम लोग का निकल आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। सब्सक्राइब करें चैनल को।